In our last session, we had started off with this chapter, that is Rise of Nationalism in Europe. And in that class, we had studied the backdrop. मतलब यूरोप के अंदर ये जो आवाज थी, why it came, what was the reason. I told you that at that time, that is in 1800s, यूरोप वॉज नॉट डिवाइडेड एज इट इज टूडे. आज हम जो मैप देखते हैं, इट इज क्वाइट डिफरेंट. अब क्या है जो अभी मैप में, क्या मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टुडेज मैप एंड द लास्ट. आज हम जो मैप देखते हैं, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, their own flag, their own constitutions, their own rules and regulations, currencies, means everything is different. If you go to France, you have franc. If you go to Switzerland, you have another currency. If you go to Germany, they have their own currency. Yes, they all are also part of European Union. मीन्स इन लोगों ने खुद को एक ग्रुप में भी बना रखा है जिसका एक अपना, they have their own currency which is called as euro, a special flag. But if you go to the countries, you will be having different kinds of, they are having their own kinds of currency, culture, religion, region, everything. But this was not the case जो हम पढ़ रहे हैं. And this is starting from the time when Napoleon Bonaparte was defeated in the Battle of Waterloo. How French people had, उस वक्त नेशनल असेंबली जब बना था, तो उस वक्त में फ्रेंच पीपल ने कैसे एक नेशन का नाम दिया था, किस चीज को वो नेशन कहते थे. दैट इज व्हाट वी हैड रेड इन दिस, दैट इट वाज द आइडिया ऑफ ला पेट्री, a French flag, French as the language, and the elected representative, that is state generals. फिर we also read about the Congress that was hosted by Metternich after Napoleon Bonaparte was defeated. तो उन्होंने क्या क्या जो है, what they had taken. अब इसके बाद हमारा हुआ था कि उस वक्त में लिबर्टी का मीनिंग क्या था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी टू पीपल. जैसे मैंने आपको बताया था दैट इन नेपोलियन बोनापार्टेस पीरियड देयर वर नंबर ऑफ करेंसीज, बट दे हैड रिड्यूस्ड इट टू टू करेंसीज. देन द वेट एंड मेजरमेंट, हर एक रीजन का अपना रहता था, which was a very big problem for the traders, for the people who were in the business. और उन लोगों ने फॉर्म किया था ज़ोल्वेरिन, that was a trade union. और उस ट्रेड यूनियन ने जो है अलग अलग जो है they had their own, उन्होंने कई अपने डिमांड्स रखे थे and those were fulfilled. Ultimately, after 1815, the old regime had emerged once again. Many of the states which were conquered by Napoleon were untouched in Germany, whereas जो फ्रांस था, जहां सबसे ज्यादा एक्सपेंशन था, उसको जो है बाउंड्री कर दिया गया. And then some of the portions of Poland were given to Russia. Then some of the portions Prussia जो है उसको कुछ portions आपके सेक्सोनी के दिए गए, and some agreement was made which is called as Treaty of Vienna. So now we are going to read. अब Treaty of Vienna जो है, that was a harshful treaty that did not allow many of the conservatives were there. Conservatives ने ये सोचा था कि वो लोग मॉडर्न, जो भी मॉडर्निटी उस वक्त थी उसके अकॉर्डिंग they would be ruling. But on the other hand, they did not want people to question them. उनको कोई क्वेश्चन करे वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था.
So how did people react to those? अब इन चीजों को लोगों ने कैसे रिएक्ट किया? What were the different thinkings of people? और ये अलग अलग देशों का आपका जाएगा. Like it will go separate for Germany, it will go separate for Greek, it will go separate for Italy, which we will be reading today. During the years following 1815, मतलब 1815 was the time when Treaty of Vienna was signed in Austria and it was hosted by Duke Metternich. तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इन ओल्ड रेजिम के खिलाफ थे. तो many of the people started making secret societies. Means ये secret थे, इनकी मीटिंग सीक्रेट होती थी. In many of the European states to train revolutionaries and spread their ideas. So revolutionary क्या था? उनका एक ही था मकसद कि the monarchy should be removed and democracy should be imposed. To be revolutionary meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. सब लोग जो है अपने लिए एक अलग नेशन स्टेट चाहते थे और एक ऐसा ही मतलब कि रेवोल्यूशनरीज था जो आपके पेपर में आएगा. फॉर 5 मार्क्स भी आ सकता है, फॉर 3 मार्क्स भी. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिसिप मज़नी. नाउ Giuseppe Mazzini was an Italian. He was born in Geneva. Though Geneva is in Switzerland, yet he was born in Geneva. And he became a member of secret society of the Carbonari. बाद में उसको जो है he was sent to exile. उस जमाने में यही होता था कि people were against and they were sent to the exile. And देन वहां उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए थे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर. नेम द 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म बाय गिसेप मज़नी, या फिर हु फाउंड द यंग इटली एंड यंग यूरोप. मतलब दिस क्वेश्चन कैन कम इन बोथ द वेज. एक उसका सीक्रेट सोसाइटी का नाम था यंग इटली, जो उसने फ्रांस में फॉर्म किया था इन मार्शलीज. This was basically for the support of Italy. And the second young Europe was formed in Bern. Bern is the capital, is the place in Switzerland. Whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. मज़नी का मानना था, गिसेप मज़नी का मानना था that God ने नेशंस को नेचुरल यूनिट बनाया है. अब इटली आप लोगों ने देखा था कि इटली के ऊपर जो है सम अदर पीपल वो वर्किंग. देन नीचे आपके 2 cities ऑफ सिसिलीज जो है दैट वाज रन बाय समवन एल्स. दिस यूनिफिकेशन कुड बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लिबर्टी. और उसके जो 2 मॉडल्स थे दैट इज यंग इटली एंड यंग यूरोप, उसके बेसिस पर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन जगहों पे छोटी छोटी सोसाइटीज आपकी बनी थी. सोसाइटीज मीन्स दे वर द रिवोल्यूशनरी. जैसे हमारे यहाँ पर भी द पीपल उसका नाम क्या, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने अपना बना रखा था वैसे. मज़नी's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज, और एक और 2 आपके मेटरेंज के आते हैं. एक तो ये आता है कि हु सेड दिस, एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्रेज इन इवन इंग्लिश लैंग्वेज. अकॉर्डिंग टू मेटरेंज, गिसेप मज़नी was the most dangerous enemy of social order. उस वक्त का जो कंजर्वेटिव्स थे उसका सबसे बड़ा दुश्मन था आपका गिसेप मज़नी. Why? Because he was the one who was spreading the ideas of revolution around, और उसको जो है कई लोग फॉलो कर रहे थे.
And that is why the people who were in power were against Gisap Mazini. As conservative regimes tried to consolidate their power, वो जितना अपना पावर लाना चाहते थे उतना लिबरलिज्म नेशनलिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा था, स्पेसिफिकली इन इटली, जर्मन, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड. These revolutions were led by liberal nationalists belonging to educated middle class elite, professors, school teachers. मतलब these were the people who spread the ideas. अब पहला क्या हुआ था? The first upheaval took place in France. ये जो हम पढ़ चुके हैं, the one which we have already read in 9th standard. The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. If you remember, this was the first change that came in France. जब स्टेट जनरल जो है उन्होंने अपने आप को थर्ड स्टेट से अलग करके जब नेशनल असेंबली बनाया था, तो सबसे पहला हुआ था कि फ्रांस बिकेम अ मोनार्की. और देन he commented, this is the one which is very famous, and I think I mean to say that this is one of the repeated questions in one marker. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. This is a very famous phrase. उनका कहने का मतलब है कि जितने भी आपके जो revolutions है, that starts in France, और अगर फ्रांस में शुरू हुआ है तो that would automatically spread to the rest of the part of Europe. The July Revolution, that is in France, the uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from UK of the Netherlands. Belgium जो है वो UK से अलग हो गया था. यानी पहला जो इसका फर्क पड़ा, that was on Belgium, which separated from the United Kingdom of, मतलब पहले बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड्स का हिस्सा था, but later on it became a separate nation. अब आपका ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, this is write a short note on the Greek War of Independence. Write a short note on the Greek War of Independence. Greece had been part of Ottoman Empire since 15th century. अब ग्रीस को अगर आप लोग ऑन द मैप ऑफ यूरोप देखोगे तो ग्रीस, मैसेडोनिया, देन क्रोएशिया, आज की डेट पर मतलब इन 2022 these are the places of what we call as टूरिज्म बड़ा अच्छा है. बट वैसे हम लोग ग्रीस को जो है सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस बोलते हैं. It began in 1821. Nationalists in Greece got the support from Greeks living in exile and from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. Greek जो है Ottoman Empire का हिस्सा था. Ottoman Empire जो है, this was the empire which was run by the Muslims, the Islamic. And the Greeks did not want the Islams to rule over them. वो लोग नहीं चाहते थे कि उन पर इस्लाम रूल करे. So they wanted their culture and their nation to be separate. और उनको सपोर्ट किया जो ग्रीक के जो लोग थे जो एग्जाइल में रह रहे थे, या many of the people who supported them. Poets, artists lauded Greek as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. ये पेपर में आया था as a fill in the blanks long back, 3 years back. Means what did they say? उन्होंने कहा
दैट ग्रीस जो है वो, क्रैडल मतलब होता है झूला, पालना, मतलब यहीं से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. सो थ्रू द पोएट्री, थ्रू द आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, उन लोगों ने लोगों के जो फीलिंग्स हैं उसको उकसाया. लाइक हम लोग मूवी देखते हैं, आई हैवंट वॉच्ड येट कश्मीर फाइल्स, मैंने उसका सिर्फ एक पहला सीन देखा था, मुझे तो इट वॉज टू व्हाट यू कैन से वायलेंट, आई सेड नो, आई डोंट वांट टू. बट जब हम कोई भी ऐसी मूवीज देखते हैं, कोई ऐसा वो देखते हैं, तो वी हैव दैट पेट्रियोटिक फीलिंग. द इंग्लिश पोएट, मतलब द पर्सन बिलोंग टू इंग्लैंड, लॉर्ड बायरन, उन्होंने तो फंड भी ऑर्गेनाइज किया, ही इवन वेंट फॉर द वॉर ऑल्सो, जहां उनकी डेथ हो गई. अल्टीमेटली, प्लीज ये पूरा पैराग्राफ एंड ये वाला जो लास्ट वाला है, when you have your test you will see this question is again and again there in your test. In the Treaty of Constantinople of 1832, ये जो ट्रेटी है ना कॉन्स्टेंटिनोपल का, ये कई बार हुआ था, लेकिन जो पहला हुआ था वो 1832 में हुआ था. एंड थ्रू दिस ट्रेटी ग्रीस was recognized as an independent nation. तो पहला आपका जो है नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हुआ. सेकेंड आपका जो है ग्रीस बिल्कुल अलग से, इट बिकेम अ सेपरेट नेशन अंडर द ट्रेटी एंड इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर. मीन्स हाउ डिड इट हैपन? इट ऑल हैपेंड व्हेन द स्पार्क स्टार्टेड इन फ्रांस. The development of national, now the romantic imagination, please अपना दिमाग यहाँ पर मत लगाना. In English literature, romantic means something related to aesthetic, beauty, something related to poems, something related to music. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. सिर्फ लड़ाई से नहीं उन लोगों ने अपने आप को किया था. कल्चर, as I said, art and poetry, stories, music. So let us look at the romanticism, a cultural movement. What is romanticism? A cultural movement. The artists, poets, उन्होंने glorify किया through their poems, through their pictures, focused instead on emotions, intuitions and mystical feelings. उन्होंने लोगों के फीलिंग्स को इकट्ठा करने की कोशिश की. कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर, पास्ट. हम लोग बेसिस क्या कहते हैं? व्हाई डू वी कॉल आवरसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो? क्योंकि हमारी हिस्ट्री, अगर हम लोग इफ वी टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज समवेयर इन आपका पाकिस्तान, और वहीं से इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ था. सो कहीं ना कहीं हमारा हिस्ट्री जो है, हमारा कॉमन कल्चर पास जो है, वो बताता है कि हम लोग एक नेशन के थे. लाइक इफ वी टॉक अबाउट नेपाल, लेट अस टॉक अबाउट नेपाल, नॉट टू पाकिस्तान, क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट्स में यू नो बी रेडी विथ स्टोन्स कि मैम बाहर आए और हम उनको लगाएं. तो लेट अस टॉक अबाउट पाकिस्तान, सॉरी श्रीलंका. लेट अस टॉक अबाउट नेपाल. नेपाल में जो लुम्बिनी है, the place, birthplace of Buddha, and then आपका जनकपुर, the birthplace of सीता माता. अगर हम लोग अपने कल्चर को देखते तो हमारे को कहा जाता है कि वो जनक राज जो थे वो जनक राज थे. तो कहीं ये नहीं बोला है कि सीता was a नेपाली. It is said that सीता was सीता belonged to India. So that shows we had a collective heritage, कलेक्टिव कॉमन पास्ट. तो कहीं ना कहीं हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं. राम, अब तो हम बोलते हैं नेपाल के वो दामाद जी थे, लेकिन उस वक्त में तो नेपाल और दैट बॉर्डरिंग एरिया ऑल वर पार्ट ऑफ इंडिया. बुद्धा, जिनके बारे में आप लोग अभी पढ़ोगे इन योर इंग्लिश, इन द लास्ट चैप्टर है वो तो आपका द सरमन एट बनारस. लेकिन यू विल से आप जो हो उसमें अगर देखोगे तो लुम्बिनी वॉज पार्ट ऑफ इंडिया.
So that means कहीं ना कहीं okay, now due to certain circumstances Nepal has been recognized as a separate nation. तो कहीं ना कहीं we had a common past. Other romantics such as German philosopher Johann, ये सारे जो names है ना, I'm sorry but you have to remember. Gottfried, उन्होंने कहा था Das Volk. ये जो VOLK है ना, हम इसको walk नहीं बोलते, folk बोलते हैं. Volkswagen. If you have seen that car, Volkswagen. It's not Volkswagen, it is Volkswagen. क्योंकि वो तो जर्मन का ही है वो. तो Das Volk मतलब the common people. 1 marker question. ये अभी जितने आ रहे हैं सब 1 marker है. Then he said true spirit of nation folk gist. कई songs, folklore मतलब होता है लोक संगीत. मतलब इससे मैसेजेस दिए गए. अब गाना तो सब सुनते हैं, पढ़ तो नहीं सकते सब लोग, लेकिन गाना तो सब लोग सुनते हैं. नाउ इन पोलैंड का अपना एक अलग सी कहानी थी. जो पोलैंड के लोग थे, पॉलिश, उनको पॉलिश भी बोलते हैं, पोल्स भी बोलते हैं. आपकी जो इंग्लिश का चैप्टर है, यू विल बी हैविंग वांडा वाला चैप्टर है, उसमें पोल्स बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट पोलिश. तो वहां पर क्या था, लैंग्वेज प्लेड द रोल. मीन्स थ्रू द लैंग्वेज दे वांटेड टू शो देयर रेसिस्टेंस. अपनी जो चीज थी वो लैंग्वेज के थ्रू बोलना चाहते थे. कारोल करपिंस्की, अगेन अ 1 marker क्वेश्चन. उन्होंने अपने म्यूजिक, अपने ओपेरा, अपने डांसेस के थ्रू जो है लोगों को अराउज किया, लाइक इन लैंग्वेज. अब मैंने आपने देखा था इन 1815 पार्ट ऑफ पोलैंड वाज गिवन टू रशिया को दे दिया गया था. और वहां पर क्या था, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल and Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which ultimately was crushed. Many of the clergy, अब चर्च में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जबरदस्ती रशियन को सबक सिखाने के लिए they used their language as a weapon. Polish was used as for church gathering, for religious instructions. रशिया को गुस्सा आता था, वो क्या करते थे, they would be sending these priests and bishops to the jail or sent to Siberia. You know what is Siberia? Siberian crane. Siberia आपका जो है, it is a very cold place, आपका नॉर्थ पोल की तरफ, वहां भेज दिया जाता था. The use of Polish came as a symbol of struggle against Russian dominance. 3 marker question. ये आपका क्वेश्चन होगा एंड यहां से आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन से यहां तक आपका आंसर होगा. राइट मतलब लैंग्वेज को कैसे उन्होंने अपना जो है वेपन बनाया था. सो टिल नाउ नीदरलैंड से बेल्जियम का अलग होना, ग्रीस का अलग होना, the use of language, poetry, music, art to show their resistance हमने पढ़ा. Now what happened? ये हमने last year भी पढ़ा था that there were number of there was hunger, hardship, जिसको हमने पढ़ा था subsistence crisis. हमने जिसको पढ़ा था subsistence crisis. तो जब subsistence crisis हुआ तो what happened? In 1830, that was a time entire Europe was having the economic hardship, unemployment. People from the rural came to the cities. क्योंकि उन दिनों में in Europe आपके इंडस्ट्रीज आने शुरू हो गए थे. Though they wanted to come over there, वहां पे, लेकिन होता क्या था, overcrowd, slums. Then मशीन मेड गुड्स आपके चीप होते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका चल रहा था. टेक्सटाइल्स आपके जो है उन दिनों में ऐसा नहीं था जैसा आजकल होता, दे यूज्ड टू बी इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स.
Still, aristocrats, the rich people, they enjoyed power, whereas the peasants were struggling. They had to pay to the feudal, जो मतलब कि जमींदार होते थे वो. And उस वक्त में bad harvest, cold, subsistence crisis, if you remember, 1848. That was the time when लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली. अगर आपको याद हो, सबसे पहले आपका जो पैलेस था दैट वॉज अटैक्ड, ट्यूरिलिस पैलेस, एंड आपका जो है बैसिल, उनको अटैक किया गया. देन लुइस फिलिप को जो है पकड़ के रख लिया गया था एंड ही वॉज फोर्स टू फ्ली. एंड नेशनल असेंबली बिकेम रिपब्लिक इन फ्रांस. पॉपुलिज्म मतलब कंगाली, जीरो. पॉपुलिज्म मतलब कंगाली. यहां पे लिखा द राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म. पॉपर मतलब कंगाल. एंड वही टाइम था जब लुइस फिलिप भाग गया एंड नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक ग्रांट किया. सफरेज टू अडल्ट मेल्स एम्प्लॉयमेंट किया. मतलब ये वो टाइम था जो हमारा लास्ट ईयर का है. नाउ इसी पीरियड में 1845 वाले पीरियड में ये पेपर में आता, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिवॉल्ट ऑफ सिलेसिया. द रिवॉल्ट ऑफ सिलेसिया. सिलेसिया एक छोटी सी जगह है जहां आपके वीवर्स रहते थे. वीवर्स कौन होते हैं? जो बुनते हैं चीजों को. तो वो बताते हैं, मतलब दिस इज द अकाउंट, वो बताते हैं वहां पर दैट वो जो छोटे छोटे वीवर्स होते थे उनको कॉन्ट्रैक्टर्स आके रॉ मटेरियल देते थे. उस जमाने में क्या होता था बेटा, जो हमारा टेक्सटाइल्स है, जो हमारी फैक्ट्रीज है ना, वो ऐसी नहीं होती थी जैसे अभी है, लंबी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज. नो, द फैक्ट्रीज वर द हाउस, या कुछ लोगों ने छोटी सी जगह ले रखी थी जिसको वो लोग वर्कशॉप बोलते थे. एंड जितने भी आपके वीवर्स होते थे ना, अब कोई जो है धागा निकालता था, कोई धागे को जो है दैट वुड बी कन्वर्टेड लूम में डालकर उसको कपड़ा बनाता था. सो दे वुड बी गिवन द रॉ मटेरियल्स एंड दे वुड बी गिवन सम एडवांस पेमेंट. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने बिना सोचे समझे इन लोगों की जो वेजेस थी, इनकी जो मतलब उनको जो पेमेंट देना होता उसे रिड्यूस कर दिया. इन दीज विलेजेस कॉटन वीविंग इज मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन. सो हुआ क्या, ऑन June 4th at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their home, marched in pairs up to the mansion of their contractor. Mansion मतलब बड़ा सा महल आप कह सकते हो, a very large building. एंड उन लोगों ने हायर बोला, बट they were treated with scorn and threats. उनको जो है डराया धमकाया गया. तो उन्हें गुस्सा आया. कुछ लोगों ने जो है जाकर मैंशन के अंदर तोड़फोड़ की. स्मैश इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, पॉर्सलिन. पॉर्सलिन आपके होते हैं जो आपके क्रॉकरी वगैरह होते हैं, जिसको हम वो पॉर्सलिन, उनको तोड़ा. Another group broke into storehouse, plundered it of supplies of cloth. उसको जो है उन्होंने फाड़ के फेंक दिया. अब कॉन्ट्रैक्टर इतना डर गया दैट वो वहां से अपनी फैमिली के साथ लेकर दूसरे विलेज में चला गया. अब वहां पर he was not given the shelter, but after 24 hours he returned back और बेचारे 11 वीवर्स की जान चली गई. Elegant means beautiful. Mansions are the places, means like a rich celebrity. आपके शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन जी के घर जैसे लोगों को mansions बोलते हैं, और उनके जो windows beautiful, उसको हम elegant means beautiful. So in this manner एक जगह पर सिलेसिया में वीवर्स ने अपना जो गुस्सा था वो दिखाया था. मतलब इतना ज्यादा
भुखमरी, इतना ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन था कि लोग जो है तोड़ फोड़ पर उतर आए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जर्मनी यूनिफिकेशन. दिस इज बिट डिफरेंट एंड ऑल्सो लॉन्ग. और इस चैप्टर में इफ वी लुक इनटू द questions of past years as a class 10 student, you will find different questions like write a short note on unification of Germany, unification of Greece, independence of Greece, unification of Italy. तो हर एक का अलग अलग है. Now what happened in Germany? मैंने आपको बार बार पहले ही बता चुकी हूँ that Germany was not having the same thing what we have today. In fact, जर्मनी जो था वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग था. मतलब उसके कुछ लोग जो थे वो पोलैंड और जर्मनी एक था, सेक्सोनी एक था, आपका ऑस्ट्रिया में भी जर्मनी था, प्रूशिया में भी जर्मनी था. तो दे वर नॉट हैविंग एनी कॉमन एरिया जिसको हम जर्मनी बोल सकते थे. नाउ the revolution led by educated middle class in 1848 was underway. Events of February 1848, that is in France में जो हुआ था subsistence crisis, ये वाला है subsistence crisis. That is about the abdication of monarch. जब monarch को अपना जो है throne छोड़ना पड़ा. Universal male suffrage हुआ. But the independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire. और इन जगहों पर भी everyone wanted a national unification. They took the advantage of this growing popular unrest to push their demands for creation of nation state. मतलब एक देश, parliament, constitution, freedom of association, then आपका universal adult franchise. These were the demands they were having. So what happened in Germany? It is Germany, name is Germany, and the people are Germans, right? In the German region, a large number of political associations whose members were the professionals, businessmen, artisans, ये सब आए Frankfurt में. Frankfurt is the capital right now. And they also decided, भाई फ्रांस में नेशनल असेंबली बना, हम भी जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे. And they also took a festive march around 831 और उन्होंने कहा to take their place in the Frankfurt Parliament in the Church of Saint Paul. ये दो हैं. आपका 1848 से 1880 मतलब कि तक जाएगा. ये यहाँ से शुरू होगा. उन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर नेशन एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन. मोनार्कियल रिपब्लिक मींस हेड विल बी मोनार्की बट ही विल रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट. उस वक्त जो ये डेप्यूटीज थे, दोज हु हैड कन्वीन्ड द जर्मन नेशनल असेंबली, उन्होंने जाकर फ्रेडरिक विल्हम किंग ऑफ प्रूशिया को बोला, यू बिकम द रूलर ऑफ आवर कंट्री एंड रूल अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ही नॉट ओनली रिजेक्टेड, उसने सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया, उल्टा और मोनार्क के साथ मिलकर इस इलेक्टेड असेंबली के खिलाफ हो गया. नाउ देयर वर टू डिफरेंट पीपल. ऑपोजिशंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री जो थी वो इन लोगों पर मारपीट करने लगी. ये जो मिडिल क्लास वाले थे विच कंसिस्टेड ऑफ द आर्टिसंस एंड ऑल, इनका सपोर्ट खत्म हो गया एंड अल्टीमेटली इनको इस असेंबली को जो है खत्म कर दिया द मिलिट्री एंड द रिच पीपल ने इन जर्मनी. मतलब दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप. This was the first step in Germany. Now, as I said, women never had any rights in any country till 1900s. New Zealand was the only country where you could see the universal adult franchise. India already adopted when it became independent.
बट इन अदर कंट्रीज इट वॉज नॉट देयर. विमेन के अपने जो है, यू कैन से दे वर हैविंग देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन. हम लोगों ने पढ़ा था ओलंपे डे गॉर्ज फ्रेंच रेवोल्यूशन में. उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स बनाए थे, अपनी पॉलिटिकल मीटिंग बनाई थी, बट दे वर डिनाइड द एनी काइंड ऑफ राइट्स. इन फैक्ट they could only stand. इवन जब जर्मन असेंबली बना था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो दे कुड ओनली स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. नाउ दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस द मूवमेंट्स, लेकिन वो पुराना जो ऑर्डर था जिसमें लोग डरते थे, वो चीज अब वापस नहीं आ पाई. अब उनको लगने लगा that they need to introduce the changes, क्योंकि मोनार्कीज तो चाहते थे they should rule as they were ruling earlier. Hence, in the year of after 1848, the autocratic monarchy of Central and Eastern Europe, that is आपका पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये वाला ईस्टर्न माना जाता है. आपका जर्मनी का आधा हिस्सा फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूके, नीदरलैंड, बेल्जियम, वेस्टर्न यूरोप माना जाता है, और इसको हमेशा मॉडर्न बोलते हैं आज भी. Thus serfdom and bonded labor. Serfdom is working without any मतलब bonded slaves were abolished in Habsburg and in Russia. उन्होंने हंगेरियंस को, हैब्सबर्ग में हंगेरियंस को ज्यादा इंडिपेंडेंस भी दिया. इंडिपेंडेंस नॉट इन स्टेट्स, ऑटोनॉमी मतलब उनको रूल करने का थोड़ा पावर ज्यादा दे दिया. नाउ हाउ डिड जर्मनी बिकम, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी? हमने देखा इन जर्मनी स्टार्ट हुआ था इन 1848 जब जर्मन नेशनल असेंबली बना था, but they were not successful. So how they got the success? What was the period of German unification? ये सारे आपके पेपर के क्वेश्चंस हैं. The period was 1848 to 1871. It started in 1848 and it ended in 1871. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans, जिन्होंने कोशिश की to unite into different regions of German Confederation. उसने बनाया था, नेपोलियन ने 39 confederation. Confederation का मतलब होता है 39 different states. This liberal initiative to nation building, however, was repressed by the combined forces of monarchy and military. यह भी हमने पहले पढ़ा है, जैसे अभी ऊपर पढ़ा था. इनको सपोर्ट किया था बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने, जिनको हम जंकर्स कहते हैं. इवन दो ये एक छोटा सा वर्ड है, बट मेरे ख्याल में अगर आप पेपर या किसी भी बुक को निकालोगे तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन विल बी देयर, हु वर जंकर्स? जंकर्स वर द लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया. तो प्रूशिया के जो बड़े बड़े रिच पीपल, द मिलिट्री, द एरिस्टोक्रेट्स, द मोनार्की, जब जर्मन नेशनल असेंबली बना था तो उनको दबाने की, उनको डिसबैंड करने की कोशिश की थी. बट फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया took on the leadership of the movement for national unification. Otto von Bismarck, underline this, or you can say highlight this. I think when I look into the chapter in your book, I should see each one of you, आपकी जो ये मतलब की जो है, it should be completely colorful. You should be highlighting these areas. Now, Otto von Bismarck is called as the architect of Germany. कितनी बार भी ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आपके 100% होगा. If your teacher has done, then also you'll see that this question is there. Who is called as the architect? Architect का मतलब क्या है? He was the one who designed all these things.
ही वॉज द डिजाइनर ऑफ द प्रोसेस. उसने प्रूशियन आर्मी एंड वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी, मतलब द पीपल हु वर वर्किंग विद द मोनार्की, उसके उनमें जो पार्लियामेंट में जो लोग काम करते थे उनके साथ मिलकर देयर वर 3 वॉर्स. क्योंकि ये एरिया था जहां जर्मन्स रहते थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. अल्टीमेटली इट एंडेड इन द प्रूशियन विक्ट्री एंड जर्मनी एक देश बन गया. एंड प्रूशिया, उस वक्त प्रूशिया वॉज पार्ट, मतलब कि इट वॉज एक्चुअली जर्मनी का मेजर हिस्सा था. उसका जो राजा था विलियम वन, ही बिकेम द किंग ऑफ जर्मनी. एंड कैसा हुआ था ये? देयर इज वन वेरी फेमस हॉल, हॉल ऑफ मिरर्स, वर्सलीज में. वहां ऑल द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, they all came and Kaiser William I was proclaimed as the new ruler of Germany. और जर्मनी, एज आई सेड, मोस्ट ऑफ द, आज का जो जर्मनी है 90% पहले वो प्रूशिया का हिस्सा था. अब तो प्रूशिया है ही नहीं. तो जो प्रूशियन स्टेट पावर्स थे उनका जो करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, उनका जो जुडिशियल सिस्टम था, दे ऑल वर प्रैक्टिस्ड इन जर्मनी. दस जर्मनी आपका यूनिफाई हो गया, जो पहले मतलब कि अलग अलग देशों में बटा हुआ था. इट वॉज, some of the portion was in France, some of the portion was in Austria, लेकिन now it had became a single country called Germany. And all of this was done by the architecture, the cleverness of Otto von Bismarck. He is called as the architect of Germany. So this was his one. Now, हाउ वॉज इटली यूनिफाइड? इटली की तो कहानी ही बहुत ही अजीब सी है. अगर आप लोगों ने पहला मैप देखा हो, इफ यू हैड लुक्ड इनटू द मैप ऑफ इटली, पहला, दिस इज इटली. अगर आज आप देखोगे तो ये जो नीचे लटकता हुआ ये जो दिख रहा है ऐसे मुंह बनाता हुआ, दिस इज इटली. स्मॉल स्टेट्स, सर्दीनिया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये पूरा इटली है. लेकिन अगर आप लोग उस वक्त में देखते 1800s में, तो व्हाट हैपेंड इज, ये जो ऊपर स्मॉल स्टेट्स लिखा है उस पे ऑस्ट्रिया जो है वहां के किंग रूल करते थे. नीचे जो था वो स्पेन के अंडर था. ये जो बीच में ब्लू कलर का दिख रहा है वहां पर पोप, यानी कि जो चर्च के हेड थे वो रूल करते थे. वेरस जो आपका ये यहाँ पर लेफ्ट में दिख रहा सर्दीनिया, दिस वाज अ एरिया जहां इटली का प्रिंस रहता था. लेकिन दे हैड नो कंट्रोल. ये जो ऊपर का हिस्सा था दैट वाज अंडर ऑस्ट्रिया, नीचे का स्पेन, बीच का पोप. तो ये जो इटली थी वो 7 अलग अलग प्लेसेस में डिवाइडेड थी. यू विल बी स्टार्टिंग योर पैराग्राफ विद दिस. Italy was a patch of 7 different states. It was a patch of 7 different states. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentations. The Italians were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire. During the middle of 19th century, Italy was divided into 7 states, out of which only one, Sardinia, was ruled by Italian princely. The north was under Austrian, the center was under Pope, and the
नीचे जो है आपका 2 स्टेट जो लिखा हुआ था, दैट वाज अंडर बोरबोन किंग्स ऑफ स्पेन. इवन द इटालियन लैंग्वेजेस हैड नॉट वन कॉमन फॉर्म, सब अलग अलग बोलते थे. सो इसको अगर आपको याद हो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अबाउट गिसेप मजनी, हमने पढ़ा था. सो he was the one who had formed the Young Italy, the secret club. He had formed a secret society called Young Italy for the diminution of his goals. और 1831 and 1848 में तो the जो उसने उठाया था that was a failure. Now Sardinia, Piedmont, दैट वॉज द ओनली प्लेस जो कि जहां पर राजा रहता था, जो ओरिजिनल इटालियन किंग विक्टर इमानुअल था वो था. नाउ इन द आईज ऑफ द रूलिंग इलाइट ऑफ दिस रीजन, a unified Italy offered them possibility of economic development and political dominance. वो तो चाहते थे. So chief minister, वहां का जो चीफ मिनिस्टर था केवॉर, इस पे अलग से आपका आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केवॉर, आपके एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है. हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई वाज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. ना तो वो रेवोल्यूशनरी था लाइक गिसेप मेज़नी, ना ही वो डेमोक्रेटिक था. इनफैक्ट बाकी अमीर आदमियों की तरह ही ऑल्सो स्पोक फ्रेंच better than he did Italian. लेकिन उसने क्या किया, he very carefully, tactful मतलब चालाकी से फ्रांस के साथ हाथ मिलाया. सर्दिनिया पेडमॉन्ट सक्सीडेड, सबसे पहले क्या किया, फ्रेंच आर्मी को लेकर आया एंड जहां पे ऑस्ट्रियन थे उनको भगाया, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा था दैट बिकेम पार्ट ऑफ इटली. Apart from regular troops, a large number of armed volunteer also joined him. मतलब केवॉर को ज्वाइन किया गिसेप. अब पहले हमने पढ़ा था गिसेप मजनी, ये सेकंड इज गिसेप गरिबल्दी, ये अलग है वो अलग है. गिसेप मजनी इज कॉल्ड एज द, मतलब कि उसको जो है यंग इटली एंड यंग यूरोप किया था. उसके नीचे गिसेप गरिबल्दी वाज आल्सो वन ऑफ हिज मेंबर. ये आपका इटालियन था, ही वाज अ वॉलंटियर. नाउ ये लोग गए आर्मी को लेकर, कॉमन पीपल पीजेंट्स इनको लेकर टू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल पेजेंट्स. एंड वहां से जो स्पेनिश रूलर थे दैट इज बोरबोन डायनेस्टी के, उनको भगा दिया. यानी कि ऊपर का हिस्सा जो ऑस्ट्रियन था उनको भगा दिया, नीचे जो स्पेनिश रूलर थे उनको भी भगा दिया. एंड अल्टीमेटली जो यूनिटी आपका जो इटली यूनिफाई हुआ, तो जो वहां का प्रिंस था विक्टर इमानुअल टू, उसको वहां का राजा बनाया गया. एंड दस जर्मनी जैसे यूनिफाई हुई थी विद द हेल्प ऑफ बिस्मार्क, इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर केवॉर इज कॉल्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इटली. ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इटली. इटली अलग है, जर्मन अलग है. जर्मनी का आपका जो था बिस्मार्क है, ऑटो वन बिस्मार्क, एंड यहाँ के थे केवॉर. अब केवॉर ने क्या किया, इटली को एक कर दिया, और वहां का जो राजा था वो था विक्टर इमानुअल. लेकिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, जो पीजेंट्स थे, उनको ये नहीं पता था वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं. दे वर ओनली वॉलंटियरिंग, दे वर ओनली सपोर्टिंग, क्योंकि वहां इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी. दे इवन डिड नॉट नो, मतलब वो लोग शोर मचाते हुए जाते थे, जैसे हम लोग बोलते ना जय हिंद जय हिंद, तो दे यूज्ड टू शाउट ला तालिया ला तालिया, और उनको लगता था ला तालिया जो है विक्टर इमानुअल की वाइफ का नाम है. They did not know La Talia was a slogan. मतलब they were so innocent, they were so illiterate, illiteracy इतनी ज्यादा थी कि they even did not know what actually they were fighting for.
जो स्लोगन ला इटालिया था, that was for them, it was Victor Emmanuel's wife. So this is the picture of Italy before unification. As I said, you can see 1 2 3 4 5 6 7 states हैं आपके. ये जो दिख रहा है, this was actually Sardinia. This was the one. Then ये जो ऊपर का लुम्बार्दी लिखा हुआ है, this was under Austrian. बीच वाला पोप, ये वाला जो नीचे वाले जो थे, they were under the Spanish rulers. But with the help of Cavour, जिसने इस लड़ाई को स्टार्ट किया था, एंड इसको सपोर्ट किया था गिसेप गरिबल्दी ने. गिसेप गरिबल्दी ने. He was a volunteer. He asked the peasants to join the fray, मतलब इस लड़ाई को ज्वाइन करने के लिए, and with the help of the French army, with the help of the volunteers, local peasants, Italy was unified. He was one of the member, मतलब कि freedom fighter, and he was also one of the person who had met Mazzini. यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आप पूरा पढ़ोगे. So in the next class we would be completing this chapter with strange case of Britain. अच्छी सी कहानी है वो भी. And last but not the least, what were the events that triggered the First World War? So for today, we will be completing it till here only. So we have already read about Greek. First of all, the parting away of Belgium from Netherlands, Greek War, then Germany and Italy. In the next class, we'll be completing with Britain, and last but not the least, what triggered the First World War. Right?